اے لڑکی اٹھ، چل جلدی سے اٹھ۔ بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی اور ساتھ ہی بازوؤں پر سختی سے ٹھوکر محسوس ہوئی۔ وہ لڑکی جس کا جسم پہلے ہی زخموں سے چور تھا، ہڑبڑاتے ہوئے خود کو سنبھال کر اٹھی تھی۔ ابھی بھی تو اسے نیند آئی تھی، مگر اس دنیا نے ہر قسم کے ظلم اس پر ڈھائے تھے اور اب اسے اس اندھیری چار دیواری جو کیسے بھی برتر تھی میں بھی سکون میسر نہ تھا۔ چل باہر۔ کیا اس نے غلط سنا تھا؟ وہ آدمی اسے باہر چلنے کو کہہ رہا تھا جس نے پچھلے 3 سال سے دنیا کی ایک جھلک نہیں دیکھی تھی، جو سورج کی کرنوں سے بھی محروم تھی، جو کسی نازک پھول کی طرح مرجھا گئی تھی؟ کیا واقعی اسے باہر جانے کا کہا گیا تھا؟ ہم باہر جا سکتے ہیں۔ وہ ہاتھ کو جس میں تقریباً زخم کے ساتھ زخم تھا دل پر خوشی سے رکھتے ہوئے بولی، چل، وقت نہیں ہے میرے پاس، سر آتے ہی ہوں گے۔ اس آدمی نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر کہا، ہم نہیں چل سکتے۔ وہ بازو دکھنے پر راہ کر رہ گئی تھی۔ تیرے اسی جھوٹ کی قبر کھودنے سر خود آ رہے ہیں۔ پچھلے سال سے تو یہی کہہ رہی ہے تو چل نہیں سکتی۔ وہ آدمی گر رہا ہے، جبکہ سر کا سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے تھے۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک چہرے پر پڑا تھا، اس کے کندھوں تک آتے بال لہرائے اور وہ دیوار سے لگی تھی۔ آہ! سر کو ایک جانب سے تھامتے ہوئے وہ کراہ کر رہ گئی، ساتھ ہی سہارا نہ پا کر وہ نیچے گری تھی۔ تم پر ترس؟ اتنا کہہ کر وہ ٹوٹے دل کے ساتھ ہنسا تھا۔ میں تو تمہیں ایسی ٹھیس پہنچانا چاہتا تھا کہ جو تم زندگی بھر اپنے دل پر محسوس کرو۔ بہت نفرت کرتا ہوں تم سے اور زندگی بھر کروں گا۔ تمہارے عزیز باپ نے مجھ سے میری زندگی، میرا سب کچھ چھین لیا اور اب تم مجھ سے انسانیت کی امید رکھ رہی ہو۔ مرجان کا آدمی سے وہ اسے کندھے سے پکڑتے جکڑتے ہوئے گررایا۔ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں رہا۔ تھپڑ کی وجہ سے اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ اس کی خستہ رنگی آنکھوں میں ادکری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے دھیمے سے بولی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لب بھیج گیا تھا۔ واقعی وہ اسے سب کچھ چھین چکا تھا، کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا اس لڑکی کے پاس۔ اب ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہا، وہ دھیرے سے کہہ کر اسی کے کندھے پر گر سی گئی تھی۔ وہ درد سے آنکھیں میچتا ہوا اسے خود سے جھٹکتے ہوئے دور گرا چکا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے ندیم، اسے باہر سڑک پر پھینک دو، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ گارڈ کو سرد لہجے میں کہہ کر وہ آخری نظر اس کے وجود پر ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ ایک دم لرز اٹھی تھی، بری یادوں کے سائے سے چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ ہمیں کہیں نہیں جانا، وہ بازو چھڑاتے ہوئے ڈھہ سی گئی تھی۔ چل اٹھ، سر آتے ہی ہوں گے، گارڈ نے دانت جما کر غصے سے کہا۔ ہم نہیں جائیں گے۔ وہ گھبراتے ہوئے گھٹنوں میں سر دبا کر چہرہ چھپا چکی تھی۔ گارڈ نے غصے سے اسے کوئی چیز سمجھ کر پیر سے ٹھوکر ماری اور پھر بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ جو گھٹنوں میں سر دیے کب سے سسک رہی تھی، ایک دم پزل ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا بھی تھا مگر یہ نہیں مانی، کہتی ہے چل نہیں سکتی۔ گارڈ بھاری قدموں کی آہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوتے وقت بولا، جبکہ اس کے پیچھے بھی قدموں کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ ڈاکٹر چیک کریں۔ وہ جلدی سے آواز کی سمت دیکھ گئی تھی۔ یہ آواز تو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی، پوری دنیا میں وہ اس آواز کو پہچان سکتی تھی۔ آپ پلیز لائٹ کا سوئچ آن کریں اور کوئی کھڑکی کھولتے ہیں، کمرے میں دم گھٹتا ہوگا، بالکل بھی ہوا نہیں آ رہی ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر گارڈ نے لائٹ سوئچ آن کیا تھا اور کھڑکی بھی کھول دی تھی۔ بے چینی سے وہ اس سمت دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا ستمگر بے صبری سے دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ وائٹ 3 پیس سوٹ میں ملوث تھا، کلائی پر برانڈیڈ گھڑی باندھے وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں رکھے اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ سنہرے بال جیل سے خوبصورتی سے سیٹ کیے گئے تھے، دودھیا سفید رنگت دہی سے مڑی ہوئی پلکوں کے سائے میں سنجیدہ عدل گرے آنکھیں آج ان میں کہیں نہ کہیں ہمدردی تھی اور طنز تھا۔ وہ مسکرانا چاہتا تھا اس کی بے بسی پر۔ انتہا کا حسین تھا وہ، مگر تھا تو اس کا ستمگر۔ وہ بے بس نظروں سے اسے کچھ پل دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے قریب بیٹھا تھا، جس پر وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی، لیکن خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ روک گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھی۔ ڈاکٹر بھی اسے ہمدرد بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ زخموں سے چور تھی، بکھرے بال، رنگ جو گندمی ہو گئی تھی، میلے کپڑے، اجلی حالت۔ ڈاکٹر نے گھبرائی ہوئی نظر سے پیچھے دیکھا، جس پہ ہر 2 قدم آگے بڑھا اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ کیا آپ شروع سے ہی نہیں چل سکتی؟ ڈاکٹر کے سوال پر وہ لڑکی ایک بار پھر اس کی جانب دیکھ گئی تھی۔ نہیں، یہ پہلے ٹھیک تھی، کچھ دنوں سے کھا نہیں رہی۔ اور کیا الیکٹرک شاک کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے؟ گارڈ کی بات پر ڈاکٹر کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ اٹ از پاسبل، اگر زیادہ مقدار میں الیکٹرک شاک یعنی بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے غرض سے دی جائے تو دماغی جسمانی طور پر انسان نارمل ایکٹیویٹی سے ڈسمس ہونے لگتا ہے۔ گارڈ نے اپنے مالک کی طرف دیکھا تھا، جسے راز برابر فرق نہیں پڑا تھا سن کر۔ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ یہ لڑکی تڑپ تڑپ کر مر جائے، اس کا مطلب یہ لڑکی اب کبھی نہیں چل پائے گی۔ گارڈ نے فکر سے مندی سے کہا، ہو سکتا ہے
अगर प्रिजन रेट पर इसे ऐसे ही फिजिकली और मेंटली टार्चर किया गया तो मुकम्मल डिसेबल हो जाएगी। हो सकता है जान से ही हाथ धो बैठे। आप जा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो नदीम आपको ले आएगा। वो संजीदगी से गोया हुआ कार्ड डॉक्टर को लेकर कमरे से बाहर निकल गया था। वो घुटने टेकता हुआ उसके चेहरे पर झुका। वो घबराते हुए हथेलियों को रगड़कर पीछे हुई थी। मर क्यों नहीं जाती? वो सर्द लहजे में उसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए बोला। इसकी ब्राउन आंखों में आंसू आए थे और मोती की सूरत में उसके मैले चेहरे से बह गए थे। वो उसके चेहरे को करीब लाते हुए गोया हुआ। वो मुसलसल उसकी हैदिल गिरे आंखों में देखती जा रही थी। अभी मार दे मुझे, वो धीमे से बोली थी। वो पैंट की पैकेट से पिस्टल निकालकर उसके सर पर रख चुका था। मार दे, वो आंखें मीचते हुए धड़कते दिल के साथ बोली थी। जबकि वो जो उसे तंग करने की नई तरकीब सोच रहा था, अचानक पिस्टल को धीरे से पीछे करते उसकी गर्दन से दबोच चुका था। जानती हूँ मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ, चाहे तुम्हारे जिस्म में खून की एक बूंद बाकी ना रहे। तुम सड़ जाओ, लेकिन ये सांसें चलनी चाहिए हर हालत में। तुम्हें इन अजियतों से गुजारना चाहता हूँ जो मैंने देखी और महसूस किए। बिखरे सख्त लेजे में कहता हुआ वो उसे और करीब कर चुका था। खौफ से उसका वजूद कांप रहा था। वो खौफ बनना चाहता हूँ तुम्हारा, जिसे तस्वुर करते ही तुम लरज जाओ, जो तुम्हारी जिंदगी सबसे बड़ा डर हो, जो तुम्हारी तबाही की वजह से हो, जिसे सोचकर तुम्हारा दिल धड़कने लगे। वो कांपते हुए सुर्ख आंखों से उसके गिरे आंखों में देखकर एक ही सवाल कर रही थी, मेरा कसूर क्या था? दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो उसके बालों से उंगलियों को निकालते हुए और संजीदगी से पैंट की जेब पॉकेट में हाथ डालते हुए उठ खड़ा हुआ था। साहब, आपने बुलाया था, एक मुलाजमा अंदर आते हुए बोली थी, जबकि लड़की की यह हालत देखकर उसका खून सफेद हुआ था। इसका इतना ख्याल रखिए कि ये 2 दिन में चलने के लायक हो जाए। उसके बाद आपकी आमना उसके बाद आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी और आपको यहाँ काम करने की भी जरूरत नहीं। वो हुक्म देता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। उसके ठीक जाते ही खिड़की से एक साया गुजरा था। उसके जाते ही मुलाजमा उस लड़की के पास बैठते उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगी थी, जबकि वो मुर्दा सी नजरों से उसे देखती रही जहां से वो सितम कर गुजरा था। मरजान काज़मी दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में से सबसे पहला। पूरी दुनिया जानती है, इतना बड़ा रईस पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पूरी 3 कंपनियां संभालता है और वो भी दुनिया में टॉप पर चल रही हैं। हमें इससे कोई तकलीफ नहीं, मगर इसे हमसे है। पिछले कुछ महीनों से हमारा काम बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सप्लाई नहीं हो रहे, धंधा ठप हो चुका है, हमारा नुकसान हो रहा है। हमारे आदमी पकड़े गए हैं, कुछ मारे गए हैं, कुछ कैद में। और जिस दरिंदा से इमरान आदमी को मैं जानता हूँ, वो हमारे आदमी से एक एक लफ्ज निकलवा लेगा, लेकिन इससे पहले वो हम तक पहुंचेगा। हमें इस तक पहुंचना होगा। एक अंधेरे कमरे में बड़ी स्क्रीन पर मध्यम रोशनी में इमरान आदमी की फोटो और वीडियो चल रही थी। अंधेरे में छुपी एक शख्सियत इस पर तबसरे करके पूरे कमरे में मौजूद लोगों को इसकी शख्सियत से आशना करा रही थी। इनके चेहरे अंधेरे में छुपे थे। तभी टेबल पर पड़े फोन पर बेल बजी थी। तुम्हारे लिए बड़ी खबर है। इमरान आदमी इस वक्त पाकिस्तान में है, अपने किसी खुफिया फार्म हाउस पर। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, वो निकलने ही वाला है। ब्लैक मर्सिडीज है, कार का नंबर मैसेज कर रहा हूँ लोकेशन के साथ। और फिर सिगरेट का कश लेते हुए शख्स कुर्सी पर बैठते हुए भारी आवाज में बोला। दूसरी तरफ से मुकरे कहका सुनाई दिया था। दोनों फोन पर कहका लगाते हुए हंसे थे। सर, आप गए नहीं? नदीम, जो उसका स्पेशल गार्ड था, कॉफी का कप उसके सामने टेबल पर रखते हुए पूछा। मैं इसे साथ लेकर जाना चाहता हूँ। वो कॉफी का कप उठाते हुए संजीदगी से बोला। लेकिन सर, ऐसा फैसला अचानक क्यों? कोई मुझ पर नजर रख रहा है और आज फार्म हाउस में कोई आया था जिसे तुम में से किसी ने नहीं देखा। मेरे पास पिस्टल थी, मैं इसे मारना चाहता था तो मार सकता था। वो कॉफी का सूप लेते हुए लब बीत चुका था। मुलाजमा इस लड़की को लिए गार्डन में से चलाने की कोशिश कर रही थी और वो कमजोर की वजह से लड़खड़ा रही थी। मुझसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? मैं अभी भी सिक्योरिटी टाइट करता हूँ और उसकी डिटेल निकालता हूँ, लेकिन आपने इसे मारा क्यों नहीं? नदीम ने हैरत से पूछा। इसने जरूर बैकअप पर इतला दी होगी। वो मेरी लोकेशन जानते हैं और मुझे मारने के लिए भी निकलेंगे। गार्ड परेशान हुआ, लेकिन अपने मालिक को मुतमईन और पुरसकून देखकर हैरान भी हुआ था। वो जानता था कि इसे कुछ नहीं होना था, लेकिन आने वालों की आज मौत लाज़िम मुल्ज़िम हो गई थी। मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम कौन हो और साहब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मुलाजमा ने इस लड़की को हाथ से पकड़कर सहारा दिया और पूछा। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, और जहां तक हम कौन है की बात है वो मायना नहीं रखता। अब हम सब कुछ खो चुके हैं। धीमे से लहजे में कहती हुई वो बागीचे में नजदीक पड़े सीमेंट के बेंच के सहारे बैठी थी। फिर वो तुम पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? तुम उनके आगे कुछ बोलते भी नहीं हो, और तुम भाग क्यों नहीं जाती यहाँ से? हम यहाँ से भाग कर जाएंगे भी तो कहाँ? सब तो बर्बाद हो गया। लड़की की आंखों में आंसू की नमी से चमकी थी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे फरजाना कह सकती हो। हमारा नाम ताबीर है, वो मुख्तसर कहते हुए रुकी थी। सिर्फ निगाहों से वो टेस्ट पर खड़ा न जाने कब से इन दोनों को देख रहा था।
میں آپ کو بیجان کہہ سکتی ہوں، آپ عمر میں بالکل میری بیجان جیسی ہیں۔ ملازمہ نے تعبیر کو ہمدردی نظروں سے دیکھا تھا، کتنی معصومیت ہے اس لڑکی میں۔ ہاں بیٹا بالکل، بلاؤ مگر سر کے سامنے خیال رکھنا۔ وہ کافی کا کپ ٹیرس کی دیوار پر رکھتے ہوئے اٹھاتا۔ آسمان پر کالے بادل امڈ آئے تو ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ تعبیر نے ایک بار پھر نہ جانے کیوں ٹیرس کی طرف دیکھا تھا۔ ہوا کی وجہ سے اس کے سنہری بال بار بار اس کی پیشانی پر بکھر رہے تھے۔ وہ کسی ایک نقطے پر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک گھر سر جھکا اس کے قریب رکا تھا۔ تعبیر نے اس کے لبوں کو ہلتا محسوس کیا۔ وہ بغیر اس کی جانب دیکھے سنجیدگی سے گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ گارڈ سر جھکاتے ہوئے واپس چلا گیا تھا۔ کچھ دیر میں وہی گارڈ نیچے آیا تھا۔ سر کا آرڈر ہے، آپ فارم ہاؤس کے اندر ہیں، موسم خراب ہونے والا ہے، ہم کچھ دیر رکنا۔ فرزانہ نے تعبیر کا ہاتھ تھامتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ اس کے سارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی فارم ہاؤس کے اندر چلی گئی تھی۔ گارڈ کو واپس بھیج کر ان کو جا چکا تھا۔ ندیم کچھ پتا چلا؟ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر وہ سنجیدگی سے پوچھ بیٹھا تھا۔ نہیں سر، پورے پاکستان میں نہیں ہے، یہ تیسری بار ہوا ہے کہ ایک ایک گھر ڈھونڈنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملا۔ تو پوری دنیا میں ڈھونڈو، دنیا کے ہر ایک کونے میں اسے تلاش ہو، لیکن مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ اس کے سخت لہجے پر ندیم ایک سے دو قدم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ مرجان کے غصے سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ سر وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائے گا جس کی آپ کو تلاش ہے۔ ندیم اتنا کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا علاج صرف تنہائی ہے، ورنہ وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا جو اسے نظر آتا ہے۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور ٹھنڈی تیز ہوا اپنے زور و شور پر تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے کسی کے دل کا حال بیان کر رہی ہو۔ وہ اپنا وائٹ کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑ کر بارش کی آغوش میں آیا تھا۔ ٹھنڈی پرسکون بوندیں اس کے بے سکون وجود میں جیسے اس کو ایک سکون کی لہر چھوڑ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتے اس احساس سے آشنا ہو رہا تھا جو اس کے جینے کی وجہ تھا۔ ایک دردناک گراہٹ اور غصے کے ساتھ وہ ٹیرس پر موجود پھولوں کے وہاں سمیت سب کچھ توڑ رہا تھا، جبکہ گارڈ جو اس کی آواز سن کر وہاں آئے تھے اسے اس حالت میں دیکھ کر فوراً وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ اس کے در سے شاید آشنا تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مرجان کاظمی کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے کسی کی تسلیاں چاہیے۔ وہ برداشت کر سکتا تھا جسے بچپن سے کرتا آیا تھا۔ نہیں مما، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہمیں ہمارے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ درد سے نڈال ہو رہا تھا، دل میں اڑتا ہوا درد اسے تکلیف دے رہا تھا۔ بے مشکل لڑکھڑاتے ہوئے وہ اٹھا اور بارش اسے مکمل بھگا چکی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھا، مگر اس میں دلدار انسان کی طرح پوری دنیا کے سامنے وہ مرجان کاظمی تھا جسے کسی کا خوف نہیں تھا، جس کی کوئی کمزوری نہیں تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے تک پہنچا، دروازے کو سختی کے ساتھ بند کرتا اور بیڈ تک آیا اور کبٹ کا دروازہ کھولا تھا، لیکن شاید اسے وہ چیز نہیں مل رہی تھی جو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا وہ اپنی دوائی ڈھونڈ رہے ہو؟ ایک گارڈ نے جو شاید نیا تھا دوسرے گارڈ کے کان میں دھیرے سے پوچھا تھا، جبکہ دوسرا گارڈ اسے جلدی سے ونڈو سے کھینچ کر وہاں سے لے جا چکا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اگر اس وقت وہ ان دونوں کو دیکھ لیتا تو دونوں کی موت طے تھی۔ ندیم، وہ غصے سے گر جا۔ سر، ندیم جلدی سے اندر آیا تھا۔ وہ بیٹھ کے سارے نیچے بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ غصے سے گرا۔ سر معاف کر دیں، صبح جب آپ نے بیگ میٹ کو دینے کے لیے کہے تھے شاید میں نے وہ غلطی سے اس لڑکی کو ہی دے دیا۔ ندیم کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی اس سے، اور وہ یقیناً جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا سوچ رہا تھا۔ بیٹا یہ کپڑے مجھے دے دو، میں ان کو دھو دوں گی۔ اور اب کیسا لگ رہا ہے؟ طبیعت بہتر ہوئی؟ فرزانہ نے تعبیر سے پرانے کپڑے لیتے ہوئے پوچھا۔ پہلے سے بہتر لگ رہا ہے بیجی جان، آپ نے بالکل درست کہا تھا، ہم فریش ہو گئے۔ تعبیر نے گیلے بالوں سے ٹاول نکال کر دوپٹہ گلے میں ڈالتے ہوئے کہا اور آئینے میں اس نے خود کو ایک نظر دیکھا۔ بہت دنوں بعد وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ وائٹ سمپل سوٹ میں اور اوپر ریڈ چنری دوپٹہ پہنے اس کی گندمی رنگت نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ یکدم کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ندیم اس سے پہلے کچھ کہتا، تعبیر کو اس دوپٹے میں دیکھ کر اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ یہ دوپٹہ مجھے واپس کر دیں جلدی، ندیم نے بوکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ تعبیر نے خوف سے دوپٹے کو مٹھی میں کس کے پکڑا تھا۔ مٹھی میں کس کے پکڑا تھا۔ ٹائم نہیں، پلیز واپس کریں۔ ندیم خود اس کے گلے سے دوپٹہ نہیں نکال سکتا تھا، اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ بری کشمکش میں پھنس چکا تھا۔ فرزانہ حیران و پریشان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ندیم، اس سے پہلے ندیم کچھ کہتا، اس کے قدم جم گئے تھے مرجان کی آواز سن کر۔ آپ پلیز باہر چلیں۔ وہ فرزانہ کو لے کر فوراً روم سے باہر نکلا تھا، جبکہ تعبیر کے ہاتھوں میں ٹھنڈا پسینہ آیا تھا اس کی آواز سن کر۔ کچھ پتا چلا کیا؟ وہ ابھی تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اچھا ٹھیک ہے، کب تک چھپے گا؟ کبھی تو باہر آئے گا۔ سگریٹ کا کچ لیتے ہوئے شخص فون پر بولا۔ ہاں نظر رکھو، پل پل کی خبر چاہیے مجھے۔ دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد اسے غصے سے سگریٹ پھینک کر اس پر پیٹ رگڑا تھا۔ چاہے اسے شک ہو جائے، چاہے وہ سیکرٹری جتنی بڑھا دے، مجھے مرجان کاظمی کی موت کا اعلان سننا ہے۔ بولتے ہوئے اس کے منہ سے سگریٹ کا دھواں ہوا میں خارش ہوا تھا۔ جب بھی گھر سے باہر نکلے اسے اس کے گارڈز کو اس کی گاڑی پر اتنی گولیاں چلنی چاہیے کہ ہواؤں میں خوف کی ایسی لہریں دوڑیں کہ آئندہ مرجان کاظمی جیسا شخص دنیا میں جنم لینے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ اندھیرے کمرے میں وہ ایک دروازے کے پیچھے غائب ہوا تھا۔
सब गुस्से में वो जोरदार आवाज से दरवाजा खोल चुका था। फरजाना ने लाउंज में दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर दिल में ताबीर के लिए दुआ की थी। न जाने क्या होगा अब, वो सोचते हुए कांप गई थी। ताबीर ने खौफ भरी नजरों से उसकी हालत देखी थी, बिखरे बाल, सुर्ख आंखें और उसके भीगे हुए कपड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये दुपट्टा लेने की? उसके गले में वो दुपट्टा देखकर उसकी आंखें लाल अंगारा हुई थी, जबकि ताबिर ने खौफ से अपनी गर्दन पर पहने हुए दुपट्टे पर हाथ रखते हुए कुछ कदम पीछे हटा लिए थे। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था, साथ ही अपना वजूद कांपता हुआ महसूस हो रहा था। हाउ डेयर यू, इस सोए राज में तो जान ले लूंगा। किसी जख्मी शेर की तरह वो उसे कंधे से पकड़ते हुए धाड़ा था। उसके गुस्से की शिद्दत से सख्त गिरफ्त की सूरत में ताबिर ने अपने कंधों पर महसूस की थी। ताबिर ने खौफ से आंखें मीची थी। क्या समझती हो तुम खुद को? इसे दोनों कंधों से पकड़कर वो संजीदगी से बोला, उतारो इसे, वापिस करो मुझे। वो कुछ सोचते हुए खुद को कंपोज कर गया था। पीछे हटते हुए उसने ताबिर की तरफ हाथ बढ़ाया दुपट्टा लेने के लिए। ताबिर ने दुपट्टे पर हाथ रखते हुए खौफ से सर को नामे जश्न दी थी। आई आई सेड दुपट्टा दो मुझे। सुर्ख अंगारा आंखों से देखते हुए हाथ आगे बढ़ा चुका था। गुस्से की शिद्दत से उसका हाथ कांप रहा था। ताबिर ने डरते हुए पीछे दीवार से लगी थी। तो तुम चाहती हो ये कि मैं अपने तरीके से वापस लूं? वो सर दिलेजे में उसके दाएं बाएं दीवार पर हाथ रखते हुए फरार होने के रास्ते बंद करते हुए गोया हुआ। ऐसा मत करें सर प्लीज। वो कांपती उसकी सुर्ख आंखों में देखकर खौफ से नजर झुका गई थी। आज तक पिछले 3 सालों में आप जो कुछ करते आए हमने बर्दाश्त किया, एक सवाल तक नहीं किया कि आप हमको कौन से गुनह की मार मारने बैठे थे, कि शायद हमसे ही अनजाने में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी कीमत, जिस गुनाह का खमियाजा आज हम इस सूरत में भुगत रहे हैं। नजर झुकाते हुए वो बोलती गई और वो सपाट नजरों से उसे लब भींचे हुए देख रहा था और खामोशी से सुन रहा था। आपने हमें थप्पड़ तक मारे, हमें मेंटली टॉर्चर किया, हम तब भी कुछ नहीं बोले, लेकिन आज आज आप हमारे गले से दुपट्टा मांग रहे हैं जो हम आपको कभी नहीं देंगे। वो नजर उठाती हुई उसकी सुर्ख आंखों में आके डाल गई थी। वो सर्द नजरों से उसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए दिल ही दिल में उसकी हिम्मत की दाद दे रहा था। इतनी कमजोर भी नहीं थी वो। पूरी दुनिया मर्जन काजमी की आंखों से आंखें मिलाने से खौफ खाती थी। आज हमें जवाब चाहिए, किस बात का बदला ले रहे हैं आप हमसे? क्यों नहीं छोड़ देते हमें? क्या कसूर है हमारा? कसूर? कसूर की बात करती हो तुम? कसूर मेरा भी नहीं था, कसूर मेरी फैमिली का भी नहीं था। वो कड़कदार लहजे में बोला था। उसकी कहर बरसाती धाड़ पर ताबिर कांपी थी। ताबिर की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसका खड़ा रहना मुहाल हो रहा था। वो दोबारा पैरालाइज हो रही थी। उसका वजूद कांप रहा था। जानती हो तुम्हारे बाप ने क्या किया? तुम्हारे बाप ने मेरी हंसती खेलती फैमिली उजाड़ दी। और जानती हो क्या किया? एक 10 साल के लड़के से उसकी फैमिली, उसकी कुल कायनात छीन ली। एक 10 साल लड़का अपनी आंखों से अपना जलता घर देखता रहा, अपनों की दर्दनाक चीखें सुनता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मुट्ठी बीचे वो दोनों दीवार से जोर से मारते हुए कैडबरी नजरों से उसे देख रहा था। उसके बालों में सख्ती से उंगलियां चलाते हुए उसे नफरत से दीवार से लगा चुका था। जिस इंसान ने दौलत के लिए कई मासूम जानों को मौत की नींद सुला दी, क्या मेरा इतना हक नहीं बनता कि मैं उसकी अखलौती बेटी को टॉर्चर करूं? उसके चेहरे को हाथ से जकड़ते हुए सपाट लहजे में बोला, अखलौती? तबस्सुम आपी, वो ठीक है, डैड ऐसा नहीं कर सकते। वो पैरालाइज होते खौफ से दोबारा बेहोश हुई थी, जबकि वो एक नाम मरजान काजमी के दिल की धड़कन बन चुका था। डैम इट! उसके चेहरे को सख्ती से थपथपाते हुए बेचैनी से गोया हुआ, नदीम डॉक्टर को बुलाओ भी। नदीम को डॉक्टर को लेने चला गया था। मर्जान चेंज करने के बाद सीधा ताबीर के रूम में आया था। डॉक्टर उसकी नब्ज देखकर चेकअप के बाद नदीम से कुछ कह रहे थे, जबकि फरजाना ताबीर के पास बैठी हुई थी, उसे हमदर्दी की नजरों से देख रही थी। इनको फोबिया हो सकता है, जिस तरह आपने बताया, इनका बार बार पैनिक हो जाना, वजूद का कांपना, सर चकराना, पसीना आना, ये खौफ की वजह से, और ब्लड प्रेशर भी बहुत गिर गया है डिप्रेशन की वजह से। ये कुछ दवाएं इन्हें वक्त पर देते रहिएगा। नदीम डॉक्टर को लेकर बाहर चला गया था, जबकि मर्जान छोटे छोटे कदम लेता हुआ ताबीर तक आया। वो अभी तक बेहोश बेड पर पड़ी थी। ये क्या कर रहे हैं आप? प्रधान ने घबराकर मरजान से पूछा और खौफ से बेड से उतरी थी। मरजान अजीब किस्म की वायर ताबीर की कलाई पर बांध रहा था और पैरों में भी बांधी थी। अगर आपसे देखा नहीं जाता तो प्लीज बाहर वेट करें। और चेयर खींचकर ताबीर के बराबर रखते हुए सर्द लहजे में बोला। फरजाना घबराते हुए बाहर निकल गई थी। वो एक नजर संजीदगी से बेहोश लड़की देखते हुए पॉकेट से एक रिमोट निकाल चुका था। सॉरी प्रिंसेस, बट विक अप नाउ। उसने एक बटन दबाते हुए उसकी जानिब देखा था। ताबीर का पूरा वजूद लरज उठा था। आंसू उसकी आंखों से बहते क्वेश्चन में जज़ब हुए थे। उसका पूरा वजूद करंट पर कांप उठा था। बहुत बहस इंसान है आप। ताबीर की भराई हुई आवाज और टूटे बिखरे लेजे पर उसके पास चेयर पर बैठा था। तबस्सुम कौन है और कहां से जानती हो? इसके बारे में बता दो, वरना आज इन शॉट से तुम्हारी जान निकल जाएगी। इनका भी बता दो ताकि इन्हें भी ऐसे ही टॉर्चर करो। वो नफरत भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, जबकि इसने सर्दी नजरों से उसे देखते हुए रिमोट का बटन दबाया। इस बार पहले से भी कई गुना ज्यादा चार्ज ताबीर को छू गुजरा था। ताबीर ने आंखें मीचते हुए दर्द सहा था। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी, मेरी तरह उनको टॉर्चर नहीं करने दूंगी। वो दर्द से सिसकते हुए चीखी थी।
वो गुस्से से रिमोट दीवार में मारते उसे कंधों से जकड़ चुका था। उसकी सख्त उंगलियां ताबीर को अपने बाजू में धंसती हुई महसूस हुई थी। हमें नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है। अगर हमें भी मालूम होता फिर भी हम आपको हरगिज न बताते। ताबीर ने उसकी इधर गिरी आंखों को देखकर कहा, जो सुर्ख होती जा रही थी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं इस मामले में बेहद खराब हूँ। इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो जाए, सब बता दो। कहर बरसाती नजरों से उसके कंधों पर गिर सख्त करते हुए गोया हुआ। ताबीर ने पहली बार उसको इतने करीब से देखा था। बेहद बेहद हसीन थी उसकी आंखें, एक एक नखुश, लेकिन इस वक्त वो इसको क्यों सोच रही थी? वो उसे सख्ती से छोड़ चुका था। ताबीर का असर बेड के रौन से लगा। वो सिसकी थी। वो जाने के लिए एक कदम पीछे हटा जब ताबीर ने उसका हाथ अपने कांपते हुए हाथों से थामा। वो संजीदगी से रुका था उसकी आंखों में देखते हुए। आखिर क्यों रोक रही थी उसे? मुबारक हो आपको। आप मेरे सबसे बड़ा खौफ बनना चाहते थे ना, आप बन गए सर। मेरा सबसे बड़ा डर जो मुझे मौत के करीब ले जाकर एकदम पीछे से खींच लेता है, मुझे जिंदगी और मौत के बीच रखता है। वो सुसकते हुए बोली। मरजान ने सख्ती से आंखें मीची थी। कुछ देर वो इससे आंखें मिलाने की नाकाम कोशिश करता रहा, मगर फिर नफरत से उसका हाथ झटकते हुए कमरे से जा चुका था। ताबिर ने होठों को सख्ती से कुचला और रोते हुए कुशन में सर दे दिया। कुशन ने उसकी दर्द से भरी चीखें अपने अंदर से मोई थी। ताबिर फरजाना का हाथ पकड़ते हुए उसके सहारे बाहर आई थी। वो संजीदगी से गार्ड को कुछ समझा रहा था। फार्म हाउस के गेट के सामने 5 गाड़ियां खड़ी थी। एक ब्लैक मर्सिडीज थी जिसके आगे पीछे दो कारें थी, शायद सिक्योरिटी की थी। चले मिस, कार ने ताबिर के बराबर रुक कर कहा। ताबिर ने एक नजर उसकी जानिब देखा जो मर्सिडीज में बैठ रहा था। वो कुछ सोचते हुए पीछे मुड़ा था। एक सरसी नजर उसने ताबिर पर डाली थी। वो हट भीगते बदलते गार्ड के पीछे चल दी थी। गार्ड मर्सिडीज को पिछला दरवाजा खोल चुका था। ताबिर की धड़कन बढ़ रही थी। वो खुद को कंपोज करते हुए मर्सिडीज में बैठी थी। वो नहीं जानती थी कि कहाँ जाना है और क्या होने वाला है। उसे बस हुक्म दिया गया था कि हम चल रहे हैं, और वो किसी कैदी गुलाम की तरह सर का हुक्म देते हुए हुक्म पर अमल पैरा हो बैठी थी। वो वाला सीट पर बड़ी शान से भरा जमान था। आगे की 2 गाड़ियां उसके इशारे पर चली थी। ताबिर के दिल में बेचैनी भर रही थी, ना जाने क्यों। अब रास्ता सुनसान हो चुका था। यहाँ आबादी बिल्कुल भी नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा था। सड़क पर बस गाड़ियों की हेडलाइट चल रही थी। रुको। वो कोई आवाज महसूस करते हुए कार को रुकवा चुका था। एकदम कार को ब्रेक लगी थी। ताबिर का दिल शिद्दत से धड़क उठा था। डैम इट! ड्राइवर मरजान की कार को रोकते हुए बाहर निकलकर उसकी साइड का गेट खोल चुका था। ताबिर का दिल हलक में आया था। वो जल्दी से कार से निकलते ताबिर को झटके से कार से निकाल चुका था। वो सामने और पिछले की 2 कारें ब्लास्ट हुई थी। ताबिर ने खौफ से भागते हुए आंखें बंद की थी। मरजान ने जोरदार झटके से अपनी जानिब खींचा था। उनके ठीक पीछे मर्सिडीज ब्लास्ट हुई थी। अंधेरे में 5 जलती हुई गाड़ियों ने जिनसे रोशनी पैदा कर दी थी। ड्राइवर ने फौरन फोन निकालकर कहीं कॉल की थी, जबकि उन पर एकदम से चारों तरफ से फायर हुए थे। ड्राइवर सीने पर हाथ रखते हुए सख्त होकर सड़क के बीचों बीच गिरा था। तब वह उसके वजूद को देखकर चीखी थी। वो हालत की नजाकत को भागते हुए सिरे कर किसी चीज के आसरे में आना चाहता था। चारों तरफ से ब्लैक सूट में मुलविस गार्ड ने इन पर फायरिंग की थी। हम मर जाएंगे, हमें मार देंगे सब। ताबिर ने रोते हुए उसकी जानिब देखकर कहा। वो एक दरख्त के चौड़े तने की पनाह में थे। वो संजीदगी से चारों देखते हुए अपने सीने से लगा गया था। हमें मार देंगे, हम नहीं बचेंगे सर। वो उसका कोट मुट्ठी में जोर से पकड़ते हुए फूट फूट कर रोने लगी थी। कुछ नहीं होगा, रोना बंद करें। नहीं, हम नहीं बचेंगे। वो रोते हुए उसके कोट में सर छुपा चुकी थी और वो फरार होने के रास्ते की तलाश में था। फायरिंग बंद हो गई थी। मर्दान का आदमी दोनों ने आवाज की समझ देखा था। अगर तुम चाहते हो ये लड़की यहाँ से जिंदा सलामत वापस जाए तो सरेंडर कर दो। और याद रहे, कोई होशियारी नहीं। हमारा टारगेट तुम हो, हमारा हदफ ये लड़की नहीं। अगर तुम चाहते हो ये जिंदा सलामत यहाँ से वापस जाए तो फौरन सरेंडर कर दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। ताबिर ने उसके कोट को और मजबूती से पकड़ा था। नहीं, हमें नहीं जाना, हम आपके साथ रहेंगे। होंठ भीगती उसकी गिरे आंखों में देखते हुए बोली। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, यहाँ से चली जाओ। वो उससे अलग करते हुए संजीदगी से इन लोगों की तरफ देखते हुए गोया हुआ। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। मार देंगे वो तुम्हें भी। उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेते हुए उसे समझा रहा था, जबकि वो सर को नामे जश्न देते हुए रो रही थी। मरजान कादमी, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। सिर्फ 3 तक गिनूंगा तो अगर तुम वहां से बाहर नहीं आए और खुद को हमारे वाले नहीं किया तो हम इस लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे। वो सरहद से उठा था। नहीं, हमें अकेला मत छोड़ें। वो घबराए हुए उसका हाथ पकड़कर चुकी थी। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। वो संजीदा हुआ ताबिर ने धीरे तो उसका हाथ छोड़ा था। वो सिलेंडर कर रहा है। कमांड मिलते ही गार्ड ने बंदूकें नीचे की थी। वो दोनों हाथ उठाए संजीदगी से दरख्त की आड़ से निकला था। उसके पीछे मुखालिफ सिमत में चलती ताबिर डगमगाते कदमों के साथ इसे हर कदम खुद के दूर जाता महसूस कर रही थी। वो संजीदगी से गार्ड को देखते हुए जो उसके सरेंडर करने पर बेहद हैरान थे। वो चलते गार्ड के बिल्कुल सामने रुका था। ताबिर के कदम जम गए थे। किल दी गर्ल। ताबिर के कदम जमते गए थे। मरजान के जाते ही कमांडर ने चाल बदल ली थी। एक गार्ड ने ताबिर के सर पर गन रखी थी। मरजान ने खूनखार नजर से गार्ड की जानिब देखा था।
वो कड़कदार लहजे में कहते हुए कोट की जेब से 2 पिस्टल निकालते हुए गार्ड पर फायर कर चुका था। खामोश फिजा में 2 गोलियां एक साथ चली थी। खून का एक फव्वारा कमांडर के सर के बीचों बीच से निकला और वो साख्त होकर जमीन पर गिरा था, जबकि दूसरी गोली इस गार्ड को सीने में लगी थी जो ताबिर पर गोली चलाने वाला था। गार्ड में खौफो हरास फैल गया था। दोनों हाथों में पिस्टल लिए ताबिर की तरफ तेजी से बढ़ा था, जो बेचारी गार्ड के मर जाने पर सदमे से माथा पीटने को तैयार खड़ी थी। इसके पीछे फायरिंग की बौछार होती वो तेजी से ताबिर को खींचते एक पत्थर के पीछे आया था। आपने मार दिया इनको, वो खौफ से आंख फैलाते हुए उसे घूर करेगी। अगर तुम चुप न हुई तो मैं तुम्हें भी उनके पास पहुंचा दूंगा। वो मसूनी गुस्से से उसे डरा चुका था। वो मुकम्मल चुप हो गई थी। यहाँ से 1 इंच मत हिलना, इसे हुक्म देते हुए पिस्टल लौट करते हुए चलती हुई गाड़ियों की तरफ बढ़ा था। बादल जोरदार गिरज के साथ बारिश की पेशगोई कर चुके थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। कहाँ गए वो दोनों, ढूंढो, वरना आज बात हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी ने ढूंढने के लिए अलहदा हो गए थे। वो साग पड़े कार तक पहुंचा था। उसकी गन उठाते हुए उसे लॉड किया था। ताबिर ने हैरत से उसकी तरफ देखा, जो पिस्टल पॉकेट में रखते हुए दूसरी गन पर मैक लगा रहा था। वो दोनों गन उठाते हुए एक पत्थर उठाकर मुखालिफ समित में डाल चुका था। मैंने वहां आठ सुनी, कोई था वहां। एक गार्ड पत्थर की तरफ देखते हुए बोला। गार्ड आठ की जान मुतवज्जा हुए थे उसके इरादे जानकर। ताबिर ने डरते डरते दोनों आंखों पर हाथ रखे थे। फायरिंग की आवाज खामोश फिजा में तूफान की तरह गूंजी थी। वो दोनों गन से बड़ी महारत से फायरिंग कर रहे थे, जबकि मुखालिफ समित से आती हुई फायरिंग पर डोज हो रहा था और फायर करते हुए चलती कारों को कवर की तरह ही इस्तेमाल कर रहा था। बेवकूफो, क्या कर रहे हो? दूसरी समित से अटैक करो। कुछ गार्ड काल पर दूसरी जानिब बढ़े थे जिस तरफ ताबिर थी। नटा चेंज, वो तन से कहते हुए एक घुटना टिकाते हुए उनकी जाने मुतवज्जा हुआ था। वो रुख बदलते हुए लेफ्ट साइड पर पड़ी फाइल कर रहा था। गार्ड वापस राइट साइड की तरफ मुड़े थे। हम बुरी तरह फंस चुके हैं, गार्ड ने घबरा कर कॉल पर बताया था। एक बंदा नहीं मर रहा तुमसे, इडियट। दूसरी तरफ से जवाब सुनकर वो आग बगोला हो गया था। ताबिर ने आधा मुंह खोलकर उसे देखा, जो सब गार्ड पर भारी पड़ रहा था। क्या तुम वाकई सोचते हो ये 20 लोग इसे मार सकते हैं? दो को वो पहले से ही मार चुका था। वो सब मारे जाएंगे। तुम बेवकूफ हो, सब गार्ड मारे जाएंगे। गिलास में ड्रिंक डालते हुए अंधेरे में डूबा हुआ वजूद तन से हंसा था। पहला शख्स हैरान हुआ था। मैं बहुत करीबी ताल्लुकात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि वो 20 तो क्या, इसे 100 लोग भी मार डालेगा। वो मौत से नहीं डरता, मैं जानता हूँ वो कौन है, मगर तुम वाकिफ नहीं। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। उसकी कोई कमजोरी नहीं है। ड्रिंक पीते हुए शख्स उठा। तो अब क्या किया जाए? पहला शख्स सोच में पड़ गया। उसकी कमजोरी गार्ड के मुताबिक उसके साथ एक लड़की देखी गई है। फाइनली मरजान का आदमी की जिंदगी में कोई आ ही गई। नजर रखो इस पर, और ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे वो तुम तक पहुंच जाए। ये जान लो, अगर वो तुम तक पहुंच गया सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे टुकड़े कर देगा वो। ड्रिंक का गिलास खाली टेबल पर रखते हुए अंधेरे कमरे से जा चुका था, पहले शख्स को हैरत में डालकर। इस लोगों को भी मार सकता है ये शख्स? आखिर कौन है ये मरजान का आदमी? पहला शख्स गुस्से से टेबल पर ड्रिंक्स नीचे गिराते हुए बोला। वो तो हमारी गाड़ी की तरफ जा रहा है। गार्ड ने कॉफी चीखते हुए सबको उसकी तरफ मुतवज्जा किया। तो क्या हुआ? दूसरा गार्ड लापरवाही से बोला था। गाड़ी में बॉस ने मशीन रखवाई थी। पहला गार्ड गड़बड़ा गया था। क्या? बाकी बचे कुछ गार्ड हैरत से चौंके थे। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। गन के आवाज पर वो सब खौफ से मुखालिफ समित में दौड़े थे। ताबिर हैरत से पत्थर के पीछे से निकली थी। वो गन पर निशाना लगाते हुए भागते गार्ड की जानिब फायरिंग कर रहा था। मार के ही छोड़ेगा क्या? ताबिर ने चोर नजर से देखते हुए दिल में सोचा। कुछ गार्ड जख्मी होकर वहां गिरे थे, जबकि कुछ भाग निकले थे। बारिश शुरू हो गई थी। वो मशीन गन कार में रखते हुए ताबिर की जानिब मुड़ा था। वो रोते उसके सीने से लगी थी। बारिश ने शिद्दत पकड़ी थी। हम बच गए, ताबिर ने सिर उठाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा। वो उसकी बेवकूफी और मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुराया था। ताबिर ने चौंक कर उसे देखा। वो हंसता भी था। चलो, हमें देर हो रही है। वो संजीदगी से कहता कार की तरफ मुड़ा था। ताबिर को अपने पीछे आठ सुनाई दी। वो घबराते हुए पीछे मुड़ी थी। एक जख्मी गार्ड जो नीचे गिरा था पिस्टल लोड करते हुए उसका रुख मरजान की तारीफ कर चुका था। ताबिर चीखते हुए उसकी सिमत भागी थी। गोली चलने की आवाज वीराने में गूंजी थी। वो दोनों जमीन पर गिरे थे। वो ताबिर को थामते हुए गिरा था। ताबिर ने खौफ से आंखें मींची थी। गार्ड ने उठते हुए दूसरी गोली मरजान के कंधे पर मारी थी। वो दर्द से कराहते हुए दूसरे हाथ से पिस्टल गार्ड पर फायर कर चुका था। गार्ड कराते हुए गिरा था। मरजान ने ताबिर को सहारे से उठाया। ताबिर बाजू पकड़ते दर्द से आंखें बंद करे हुए कराह गई थी। बारिश और हवा तेज हो रही थी। मौसम खराब हो चुका था। कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो? मरजान ने उसे सहारा देते हुए उठाया था। ताबिर ने अपने बाजू की तरफ देखा। उसके कोहनी पर चोट आई थी और खून निकल रहा था। उसका मतलब दोनों गोलियां मरजान को लगी थी। ताबिर ने रोते हुए उसे देखा और उसे उठाते हुए अपना सीधा बाजू पकड़ते हुए उठाता। खून खून निकल रहा है। वो कमजोर लड़के खून का वारा देखते ही रोनी हो गई थी। कुछ नहीं हुआ, बस चलो। इसकी कलाई थामते हुए वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। लेकिन आपको गोली लगी है, ताबिर ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो रोते हुए उसकी आवाज पर बैठ गई थी। आप ठीक नहीं है? मैं क्या करूं? उसका बाजू देखते हुए रोते हुए पूछ रही थी। वो उसे अपने दर्द पर बेकाबू रोता देखकर हैरान था।
اتنے ظلم کے بعد بھی وہ اس کی اتنی پرواہ کیوں کرتی تھی؟ تعبیر نے دوپٹہ گلے سے نکالتے ہوئے اس کے بازو پر رکھا. وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. ہم کیا کریں گے اب؟ ہمیں تو اسپتال جانا چاہیے لیکن میں کیسے لے جاؤں؟ اللہ میں کیا کروں گی؟ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اسے زخم دیکھ کر ٹوٹ رہی تھی. وہ ڈھیسا گیا تھا. اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے وہ بری طرح رو رہی تھی. وہ اچھے سے جانتا تھا وہ اس وقت بھی ڈرائیو کر سکتا تھا مگر وہ اسے آزمانے کے لیے اس ارادے کو ترک کر چکا تھا. سر آپ مجھ سے بولے نہ, خاموش رہیں پلیز. وہ اس کے بھی کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے بھرائے لہجے میں بولی. وہ دھیرے سے آنکھیں کھول چکا تھا. ہم اسپتال جائیں گے, میں لے کر جاؤں گی. وہ اس کا بازو دھیرے سے تھامتے اسے اٹھاتے ہوئے بولی. مگر وہ بلا دلی جیسی لڑکی کیسے سنبھال سکتی تھی اسے؟ وہ سنجیدگی سے اسے اپنی خاطر روتا پیٹتا دیکھ رہا تھا. بے مشکل وہ اسے کھڑا کر چکی تھی. مجھے راستہ نہیں پتا. وہ گھبراتے ہوئے آس پاس دیکھ رہی تھی. دور سے آتی روشن شے اور دیکھ کر وہ اور سہمی تھی. ندیم نے مرجان کی حالت دیکھ کر فوراً کار روکی اور باہر آیا. وہ دونوں بری طرح بھیگے ہوئے تھے. سر یہ سب کیسے ہوا؟ ندیم نے مرجان کو سہارا دیتے ہوئے پریشانی سے پوچھا. وہ تعبیر کی طرف سنجیدگی سے دیکھتا ہوا کار میں بیٹھا تھا جبکہ ندیم نے مزید سوال پوچھنے سے گریز کیا تھا. تعبیر پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی. فارم ہاؤس چلو ندیم. اس کے حکم پر تعبیر اور ندیم دونوں چوکے تھے. مگر آپ کو گولی, میں نے تم سے صلاح نہیں مانگی. اس کے روکھے لہجے پر تعبیر خاموش ہوئی تھی. ندیم کار تیزی سے دوڑاتے ہوئے فارم ہاؤس تک لایا تھا. وہ خود کار کا دروازہ کھولتے ہوئے نیچے اترا تھا. گارڈ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئے تھے. وہ کوٹ اتار کر نیچے پھینکتا ہوا تعبیر کا دوپٹہ بازو پر باندھ چکا تھا. مجھے ایک شخص کی ڈیٹیل چاہیے کل صبح. وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا ہوا فارم ہاؤس کے اندر جا چکا تھا. آپ اندر لے جائیں. ندیم تعبیر کو فرزانہ کے حوالے کرتے ہوئے فوراً مرجان کے پیچھے گیا تھا. بیٹا خیال سے کرو, فرزانہ نے فرسٹ ایڈ باکس تعبیر سے لیتے ہوئے کہا. جو مرجان, آپ پلیز جا کر پتا کریے نا کہ سر کیسے ہیں. تعبیر نے فرزانہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. بیٹا میں ایسے تو نہیں جا سکتی. دروازہ کھلنے پر وہ دونوں دروازے پر آئے ندیم کی طرف متوجہ ہوئی تھی. سر نے بلایا ہے آپ کو. تعبیر جلدی سے اٹھی تھی. بیٹا یہ تو لگوا لو. فرزانہ کو نظر انداز کرتے وہ ندیم کے ساتھ گئی تھی. کیا ڈاکٹر آ گئے ہیں؟ تعبیر کے سوال پر ندیم نے ہونٹ کو سختی سے بھینچا. نہیں, سر نے منع کیا ہے. وہ دروازے پر رکتے ہوئے بولا. آپ نہیں آ رہے؟ تعبیر نے اسے پریشانی سے دریافت کیا. نہیں, وہ کہہ کر واپس پلٹ گیا. تعبیر نے دھڑکتے دل کو سنبھالا اور دروازہ کھولا. سامنے کا منظر اس کی روح کو خطا کرنے کے لیے کافی تھا. وہ ایکسیلیٹر سے اپنے کندھے پر موجود گہرے گھاؤں سے گولی نکال چکا تھا. تعبیر کے قدم ڈگمگا گئے تھے. وہ بیچاری وہیں جم گئی تھی. وہ بینڈیج کرنے کے بعد شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا چکا تھا. کانپتے وجود کے ساتھ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی. وہ سپاٹ نظروں سے اس کا تائرانہ جائزہ لے رہا تھا. تعبیر کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھیں. وہ ایک دم اٹھا جس پر تعبیر نے خوف سے سر جھٹکا تھا مگر خود کی بیوقوفی پر شرمندگی سے نظریں جھکا گئی تھی. تم جا سکتی ہو. وہ فرسٹ ایڈ کٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سر سے لہجے میں گویا ہوا. آپ اب کیسے ہیں؟ وہ اٹک کر کہتے ہوئے فوراً نظریں جھکا گئی تھی. تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ مغرور الٹا سوال کر گیا تھا. آپ اگر ڈاکٹر کو بلا لیتے تو بہتر ہوتا. وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی. اچھا, اور اب میں تم سے آرڈر لوں گا. اس کے قریب آ کر رکا تھا. نہیں سوری. وہ بیچتی ہوئی گڑبڑا گئی تھی. کل تم میرے ساتھ میرے گھر چل رہی ہو. وہاں تم فرزانہ کی بیٹی بن کر رہو گی. وہ پینٹ کی پیکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے بولا جس پر تعبیر کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا. اگر تم نے تھوڑی سی وہ ہوشیاری دکھائی اور کسی سے بھی اس بارے میں کچھ کہا تو تمہاری یہ بڑی بڑی آنکھیں نکال کر ان سے گوٹیاں کھیلوں گا. وہ دھمکا دے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا. تعبیر کی گردن پر گٹی نمودار ہوئی پھر غائب ہو گئی. گھبراہٹ سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے. جی, وہ سب لوٹاتے ہوئے لہجے میں بولی. اور کسی سے بھی بے وجہ گفتگو سے پرہیز کرو ورنہ. جی, وہ جلدی سے بولی اس کی دھمکی سے بچنے کے لیے. وہ فرسٹ ایڈ کٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے جانے کا اشارہ کر چکا تھا. تعبیر اس کے گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھبرا کر چپ ہوئی تھی. ندیم دروازے پر ناک کرتے ہوئے اندر آیا تھا. اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا. مرجان نے سپاٹ نظر سے سکٹ واپس رکھتے ہوئے دیکھا. مرجان اسے کافی کا کپ لے چکا تھا. تعبیر فرسٹ ایڈ کٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تھی. اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا. اب تک ہم صرف مرجان کاظمی پر نظر رکھے ہوئے تھے مگر اب ہم اس کی پوری فیملی پر نظر رکھیں گے اور خاص طور پر وہ لڑکی جو اس کے ساتھ تھی. کانفرنس روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اسکرین پر مدھم روشنی میں ویڈیو چل رہی تھی. یہ منور کاظمی ہے, سہیل کاظمی سے چھوٹا بھائی. مرجان کا بڑا چچا اپنی بیوی کو چھوڑ کر آصر کے نام پر سہیل کی بیوی سے نکاح کر کے بیٹھا ہے. مگر کہانی کا کیا راز ہے؟ سہیل نے دوسری شادی کی تھی. وہ وہاں سے 2 اولاد ہوئی. ایک وہ مرجان کاظمی اور دوسری اس سے چھوٹی بہن زالے کاظمی. پہلی شادی میں سہیل کے 3 بچے ہیں. علی تھے سب سے بڑی بیٹی نشان اور پھر شان, جبکہ منور کے صرف 2 بچے ہیں, زنیرہ اور نجم کاظمی. سب خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے. سب سے بڑا بھائی, اس کی فیملی فائر ایکسیڈنٹ میں جل کر مر گئے مگر یہ لڑکا اور اس کی بہن بچ گئے. منور نے انہیں کیوں گھر رکھا ہے اور کوئی نہیں جانتا. شاید بھائی کی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا یا پھر مقصد کوئی اور, ہم نہیں جانتے. سب سے چھوٹا بھائی آ گئے. اس کے 3 بچے ہیں. دائم اور ماریا فی الحال لندن میں مقیم ہے اور یہ لڑکی جو آج رات دیکھی گئی اس کے بارے میں بھی سب پتہ لگانا ہے.
ندیم نے بیग कार میں रखते हुए दरवाजा खोला। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें घर क्यों ले जा रहे हैं? ताबिर ने फरजाना के सामने दिल की भड़ास निकाली। बेटा कोई बेहतरी होगी, कल जो कुछ हुआ उसके बाद तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। फरजाना ने उसे समझाया। हम कैसे एडजस्ट करेंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगी ना? फरजाना का हाथ थामे वो घबराई। हाँ बेटा मैं आपके साथ ही रहूंगी, सब बहुत अच्छे, कोई मसला नहीं होगा। वो दोनों कार में बैठी थी और इस पर खड़ा संजीदगी से इन्हें जाता देख रहा था। ताबिर ने तरह से उसकी जानिब देखा, उसे संजीदगी से देख रहा था। नदीम ने कार स्टार्ट कर रखी थी। ताबिर मुसलसल उसे नजरों से दूर जाते हुए देख रही थी और फिर वो नजरों से कहीं दूर गुम हो गया था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो फोन कान पर रखते हुए संजीदगी से बोला। वालेकुम सलाम बेटा, आप कहाँ हो और कर रहा था, वापस नहीं है? सब खैरियत तो थी ना? मुनव्वर सामने दरियाफ्त करना चाहा। सब खैरियत है, आज बिजनेस मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जा रहा था, सोच आपको बता दूं, सर्द लहजा था। बेटा फिलहाल कैंसिल कर दो, आगा अंकल आ रहे हैं, अली से और दाइम की एंगेजमेंट करना चाहते हैं। सॉरी मैं शिरकत नहीं कर सकता। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वो फोन पॉकेट में रखते अपने कमरे में दाखिल हुआ था। बेड पर पड़ा सुर्ख दुपट्टा देखकर उसके कदम रुके थे। आहिस्ते से दुपट्टा उठाते हुए उसे सीने से लगाया था। धीमे लहजे में बड़बड़ाते हुए बैग उठाते हुए उसमें दुपट्टा रखकर कमरे से बाहर निकल गया था। गार्ड पहले ही उसका इंतजार कर रहे थे। वो संजीदगी से सनग्लासेस लगाते हुए कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ था। नदीम ने कार काजमी मेंशन के सामने रुकी थी। फरजाना बैग निकालते हुए कार से उतरी। ताबिर ने घबराते हुए पूरे महल नुमा घर का जायजा लिया। बेटा जी फरजाना के साथ वो अंदर दाखिल हुई थी। मैं तो कहती हूँ अब अली से को चिढ़ना बंद कर देना चाहिए, बेचारी लाल हो रही। जोनी ने मारिया के हाथ पर हाथ मारते हुए ताली बजाई, जबकि अलीदे ने शर्म से मुंह फेरा। मिठाई खाने में मसरूफ थी, जबकि झाले आफरीन बेगम के साथ किचन में हाथ बटा रही थी। ये कौन है अब? मारिया ने फरजाना के साथ अंदर आती ताबिर को देखकर मुंह बसोरा। और ये मेट की बेटी, ये काम के लिए ही आई होगी। सोनी ने नाक से मक्खी उड़ाई। प्यारी है, अलीज़ा ने उसके मासूम कुछ देखते हुए कहा, जबकि जोनी और मारिया एक दूसरे पर गिरी थी हंसते हुए। फजूल है तुम लोगों के साथ बैठना भी। अलीज़ा ने उठते अपने कमरे की तरफ चली गई थी। असिस्टेंट के साथ डेकोरेशन डिस्कस करने लगी, क्योंकि आज अलीज़ा और दाइम की एंगेजमेंट थी। सर्वेंट क्वार्टर इस तरफ है जी, जोनी ने ताबिर का मजाक बनाते हुए इशारा करके कहा। फरजाना ताबिर को साथ लेकर चली गई। तुम जल रही हो इससे, मारिया ने जोनी को कंधा मारते हुए कहा। अरे कहाँ, मैं इस मेट की बेटी से जलने लगी? मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है, जोनी ने फकर से कहा। ओफ, मारिया उसकी इस अदा पर हंसी थी। छेड़ कर तंग कर दिया है मुझे, अली से पहले चीखती दाइम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से लगाया था। बदतमीज सिलट क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो? अली ने उसका हाथ मुंह से हटाते हुए तंग कर कहा। लो भाई, अपने होने वाले शोर से ऐसे बात करोगी? अरे कोई शर्म होती है, कोई इज्जत होती है। दाइम ने हंसी दबाते हुए कहा। तुम जिसे फ्लर्ट फौजी मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे पहले। तुम मेरी बहन निशाल पर भी लाइन मार रहे थे, जब पता चला मैं अलीदे हूँ तो मेरे पीछे लग गए। अलीदे ने तैवरी चढ़ाई। अरे तो अलीदे समझकर इसे फ्लर्ट किया, मेरी नीयत कितनी साफ है। वो एक आंख दबाते हुए शरारत से बोला। हटो, जाने दो मुझे। अलीदे ने एहतजाज किया। अरे बाबा देख तो लेने दो, लंदन से आज यहाँ तक आए हूँ, जी भर कर तो देख लेने दो। वैसे छेड़ते हुए गया हुआ, जबकि अलीदे लाल हुई थी शर्म से। वैसे मैं सोच रहा था कि मेरी अलीदे निशाल जितनी ऐसी मोटी नहीं थी, या फिर शायद खा कर हो गई हो। वो इसे बराबर छेड़ रहा था और वो शर्मा रही थी। अरे अम्मी आप, दाइम जल्दी से पीछे हटा था और अलीदे मौका पाकर फौरन फरार हुई थी। जब तक दाइम उसकी चालाकी समझा वो भाग गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया था उसकी शरारत पर। वो जो फ्लाइट लेने के लिए अभी पूछा था, मोबाइल की बेल बजने पर साइड पर और स्क्रीन पर जूनी का नाम देखकर वो संजीदा हुआ था। क्या चाहिए अब, वो उकताए लहजे में बोला, जबकि जूनी का दिल चिकना चूर हुआ था। मैं आपको फोन भी नहीं कर सकती, इतना भी हक नहीं है मुझे, जूनी ने खफा लहजे में कहा। नहीं, वो संजीदगी से आसपास देखते हुए गोया हुआ था। लेकिन मेरा हक है और सिर्फ मेरा हक है, जूनी ने मोहब्बत से कहा। क्या बकवास कर रही हैं आप? वो गुस्सा करने के लिए तैयार खड़ा था। देखिए मरजान, अब आप मुझे धुतकार नहीं सकते, हमारी इंगेजमेंट होने वाली है। आज डैड ने तुमसे कुछ नहीं कहा? वो गुस्से से मिट्टी बीच तो कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। दुनी ने हैरत से फोन को देखा। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है, आपका वेट कर रहे हैं। गार्ड ने बैग लेते हुए कहा। वो संजीदगी से बैग पर हाथ रख चुका था। गार्ड रुका था। कैंसिल कर दो, वो दो टक लहजे में कहते हुए तेजी से कार की तरफ बढ़ा था। गार्ड ने फौरन उसके हुक्म पर अमल किया। वो कुछ बोले बगैर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कार को फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ा चुका था। वो सड़क पर खड़ी टैक्सी का वेट कर रही थी। आज उसकी भी फ्लाइट थी। God what the hell! इस फजूल गाड़ी को भी खराब होना था। वो कार के होठ पर मुक्का मारते गुस्से से तनक कर बोली थी। सामने से आती तेज रफ्तार गाड़ी को देखकर उसने लिफ्ट के लिए हाथ हिलाया था, जबकि वो गहरी सोच में डूबा था। नहीं, ये कार मैं नहीं जाने दूंगी, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। वो जल्दी से कार के सामने आई थी। अचानक सड़क के बीचों बीच खड़ी लड़की को देखकर उसने फौरन ब्रेक लगाए थे। कार उससे 1 इंच के फासले पर रुकी थी। वो गुस्से से सीट बेल्ट हटाते हुए कार से उतरा था, जबकि वैसे कार से उतरता देखकर अपनी जगह पर जम सी गई थी। नजर नहीं आता आपको?
अगर ब्रेक ना लगाए होते तो मर जाती। वैसे मुकाबिल आते हुए गुस्से से बोला, जबकि वो आदमी खुले से किनके से तकने में मसरूफ थी। सुनाई नहीं देता आपको? इसका गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। आप इसे बोलने के लिए लफ्ज कम पड़ रहे थे। वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से देख रही थी। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। 1 मिनट, मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा। वो जल्दी में अपनी फ्लाइट की टिकट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा चुकी थी, जबकि वो जो गुस्से से आतिफ शाह की तरह आग बरसाने को तैयार था, उसकी बेवकूफ़ हरकत पर हैरान हुआ था। आप मेरे फेवरेट पर्सन है और पूरी दुनिया में नंबर 1 है। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी और आज आप मुझे मिल गए। प्लीज ऑटोग्राफ दे दें। वो बचपन से कहते हुए इसे कोई दिमागी मरीजा लगी। तो क्या इसके लिए भी सड़क में कूद जाओगी? वीरानी से उसे देख रहा था, जो मुसलसल बगैर बल्कि चुपकर उसे तक रही थी। हाँ, अगर मुझे पता होता था कि ये आपकी ही गाड़ी होगी तो मैं आपकी कार से टकरा जाती। वो खुशी से चहक पड़ी थी, जबकि वो ठंडी आ भरते गुस्सा जब्त कर गया। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। वो हैरान था, वो गुस्से से उसे सुना चुका था। वो बेवकूफ इतनी मोहब्बत से पेश आ रही थी। बाय द वे, आई एम तबस्सुम, यू कैन कॉल मी ज़रा। इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो मुस्कुराई, जबकि उसका नाम सुनकर उसके दिल की धड़कन बढ़ी थी। अहमद की उसके हाथ की तरफ देखते उसकी नजर उसके ब्रेसलेट पर पड़ी थी, जिसके लेटर्स थे। वो लंबी सांस खारिज करते हुए कार के हुड से आसरे से लगा था। उसका दिल नहीं मान रहा था कि उसे मिल गई है। कहाँ थी आप? धीरे से कहते हुए उसे मोहब्बत की नजर से देख रहा था। पहचान लिया? वो मुस्कुराई थी उसके मोहब्बत भरे लहजे पर। 14 साल हो गए, जानती हूँ मैं याद में हूँ। वो संजीदगी से बोला। बिल्कुल, साथ खेला करते थे, एक साथ रहते थे हमेशा। उसकी मुस्कान और गहरी हुई थी। वो संजीदगी से चलते हुए उसके रूबरू आया था। क्या हुआ? अब भी कोई शक है? कुछ भी पूछ सकते हो मरजान, मैं तुम्हारा राज हूँ। वो सीने पर हाथ बांधे हुए मुस्कुराई। वो आंखें सुकून से बंद करते हुए सीने से लगा चुका था। चलिए बॉय, वो हंसती हुई से गले लगा चुकी थी। मैं जानता था आप मिल जाएंगी मुझे एक दिन। अब एयरपोर्ट छोड़ोगे? वो तन पीछे हुई ने और वो लब पीछे हुई धीमे से बोला। मेरी फ्लाइट है। मेरी भी थी। वो संजीदगी से बोला। थी? वो हैरानी हुई। कैंसिल होगी? घर पर फंक्शन है, चल रही हूँ। इसे देखते हुए पूछ गया। किस हक से? उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली। इसके सवाल पर वो हल्का सा मुस्कुराया था। हाँ बताओ भी, किस हक से और मुझे ही क्यों ढूंढ रहे थे? वो आईब्रो उचकाते हुए शरारत से पूछ रही थी। क्या हर बात बतानी जरूरी है? वो मुस्कुराया था। हाँ, जब तक बता नहीं देते मैं यहाँ से हिल भी नहीं रही। यार, यहाँ खैमा लगाकर बैठ जाऊंगी अगर रात हो गई तो। गाड़ी के हुड पर चढ़कर बैठ गई थी, जिस पर वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराया था। मरजान, एक बात कहूँ, मैं प्यार करती हूँ आपसे। वो धीरे से उसे मुखातिब कर गई थी, जिस पर वो संजीदगी से उसे देखकर रह गया था। तुम जानते हो मुझे कितना कुछ सहना पड़ा। जब किडनैपर मुझे लेकर गए थे तो मुझे बहुत बुरी तरह टार्चर किया गया, मुझे मारा गया, मुझे भूखा रखा गया। 14 साल तक मुझे मुसलसल टार्चर किया गया। लेकिन फिर शवार को जब पता चला कि मामू जान ने अपनी प्रॉपर्टी के 40% शेयर मेरे नाम किए, तो उसने मुझे जिंदा रखने का फैसला किया। मरजान संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था। मुझे उसने पढ़ाया लिखाया, लेकिन पाकिस्तान से दूर, ताकि वो मामू जान की प्रॉपर्टी हाथ आ सके। मैंने बहुत कोशिश की तुम तक पहुंचने की, लेकिन मैं मजबूर थी। वो रो पड़ी थी। उसकी बेटी ने मुझे हर हिसाब से नीचा दिखाया। मुझे यतीम होने के ताने दिए गए, मुझे बहुत अजियत दी गई, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लिए जिंदा थी। जब शिवार घर आया वो बहुत खुश था। वो कह रहा था वो तुम्हारा घर जला कर आया है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ मरजान। मैंने मर जाने के करीब थी, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला तुम और जाले बिल्कुल सही सलामत हो। मुनव्वर अंकल तुम्हें अपने घर लाए। तुम जानती हो, जब डैड पेपर के पास केस लेकर गए तो उन्होंने कहा कि तुम गलती से खाई में गिर गई हो। बहुत ढूंढा, सबने उम्मीद खो दी थी, लेकिन मैं जानता था तुम हो। मैं महसूस करता था तुम वाकई हो। वो मुस्कुराते हुए उसे गला लगा चुकी थी। मैंने बहुत ढूंढा और अब जाकर मुझे मिली हो। उसके माथे पर लब रख तो मोहब्बत से बोल रहा था, जबकि वो दिल में नई जज्बात उभरते हुए महसूस कर रही थी। तुम्हारी आंखें मरजान, आई जस्ट लव इट। इसकी तुम क्यों सुकून से बैठी हुई हो? उठो और अपनी माँ के साथ सफाई में मदद करो। मारिया ने ताबिर को ताना दिया, जो थकार कर अभी ही बैठी थी। ताबिर का सांस फूट रहा था। अभी तो वो किचन के काम से फारिग हुई थी। वो लब भींची उठी। एक काम करो, मेरे लिए चाय बना दो। तुम बना लोगी ना? सुनी ने सोफे पर बैठते हुए रौब से कहा। जी। वो बोझल कदमों के साथ दोबारा किचन में गई थी। ये चीनी कहाँ होगी अब? वो ऊपर की शेल्फ को देखते हुए बोली। उफ, यहाँ तक तो हाथ ही नहीं जाएगा, क्या करूं? एड़ियां उठाते हुए मुश्किल उसकी उंगलियां शेल्फ से लगी थी। उसे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। वो घबराते हुए मुड़ी थी और रिलैक्स डोल में सिर्फ डिब्बा उठाने में मदद करना चाहता था। शान ने शेफ से डिब्बा निकाल कर ताबिर की तरफ बढ़ाया। ताबिर ने घबराते हुए इसे देखा, जो इसे सर से पांव तक घूर रहा था। जल्दी से डिब्बा लेकर वो इससे पीछे हटी थी। वो उंगली से पेशानी मसलता इसे घूरते हुए किचन से बाहर निकल गया था। चाय बनाकर वो धोनी को दे चुकी थी। फजूल, और कितनी गर्म है ये। एक घूंट भरते हुए वो गरम चाय का कप उसके पैरों में गिरा चुकी थी। गर्म चाय ताबीर के पांव जला चुकी थी। तुम्हें कोई काम आता भी है? फजूल की रोटियां तोड़ने आई हो? इसमें थोड़ी सी भी चीनी नहीं है। धोनी ने ड्रामा करते हुए उसे खरी खरी सुनाई। वो सर झुकाए खामोशी से सुन रही थी। माफ करना बेटा, मैं इसे समझा दूंगी। फरजाना ने आकर उसे पुचकारा। वो रोते हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी थी।
अब इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। जूनी ने लापरवाही से कंधे उचकाए। फरजाना ने नीचे गिरी चाय और टूटे हुए कप के टुकड़े समेटे थे। मारी और जूनी हंसते हुए वहां से जा चुकी थी। उसकी कौनी दीवार से रगड़ खा गई थी। जख्म अभी सूखा नहीं था, दोबारा खून बहने लगा था। वो दर्द से बाजू पकड़ते हुए पैरों की तरफ देख चुकी थी जिन पर छाले पड़ गए थे। किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं हम अल्लाह पाक, वो सजगते हुए घुटनों में सर दे गई थी। गार्ड ने उसकी व्हाइट मर्सिडीज देखकर फौरन गेट खोला था। कार पार करते हुए वो गार्ड के गेट खोलने पर शान से नीचे उतरा था। जूनी खिड़की से इस मगरू शहसीन शहजादे को देखते हुए मुस्कुराई। वो मुस्कुराते हुए पंसीर से इसे हाथ देते हुए कार से बाहर लाया था। वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम चुकी थी। जूनी पहले तो हैरान हुई, फिर गुस्से से कमरे से निकलते हुए लॉन्च तक आई थी। घर के सभी अफराद उसके आने की खबर से वाकिफ थे सिवाय ताबीर के। उसके मुताबिक वो इस्लामाबाद जा चुका था। हमारी गेस्ट ने शादी तक यहीं रहेंगी, गेस्ट रूम इस तरफ है। उसका बैग लेते हुए उसकी कलाई थाम कर मुड़ा था। जूनी ने खाजाने वाली नजरों से उसे देखा, जबकि बाकी सब मामूली बात समझकर काम में जुट गए थे, क्योंकि ऐसे बिजनेस पार्टीज वगैरह अक्सर आते रहते थे। फरजाना ताबिर को देखने गई थी। वो नीचे बैठी घुटनों में सर्दी ही सो गई थी।